Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. That is the BS Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup. And today we are going to continue with the constitutional law series. Already बहुत सारे parts upload हो गए थे. आई बटन पे मैंने वो सारे डाल दिए हैं. Today, particularly, we are going to deal with chapter 4 of constitutional law, that is Union Judiciary. We are going to do it bare act से पूरा का पूरा. हर एक article we are going to discuss in detail with examples. This video is going to be relevant for all those who are preparing for CLAT as well as all those who are preparing for UPSC, right? और for other government related competitive exams. And मैं law entrance exam के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे कि जुडिशरी कैसे है, तो जुडिशरी ऑलरेडी था ही न्यूज में कि जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए एटलीस्ट तुम्हें 3 years का लिटिगेशन करना पड़ेगा. But apart from that as well, we should know about the static part of judiciary, because if let's suppose CLAT does not work, then other entrance exams would actually work, right? Like एलिट में पूछ लेते हैं स्टैटिक, स्लैट में स्टैटिक वाला पूछ लेते हैं, एमएचसीईटी में पूछ लेते हैं. सो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा रेलिवेंट है. So we would be dealing this in this very video with all this thing as well as current affairs वाला part तो already ही इससे हो ही रहा है because judiciary था ही news में. So establishment and constitution of the Supreme Court. This is the very first, okay, article that we are going to deal with. That is article 124 of the Indian Constitution. Very, very important article because it deals with the constitution of the Supreme Court. Okay, remember this. So there shall be a Supreme Court in the country consisting of the Chief Justice until the Parliament by law prescribes a large number of not more than 7 other judges. Now हमें जो चीज है ना कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट किस चीज से बना है. वी हैव 1 CJI as well as we have 7 judges. ठीक है, 7 प्यूसने जजेस. इट्स बेसिकली प्यूसने जजेस और प्रेजेंट जजेस, वट एवर यू वॉन्ट टू से. एंड ये लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ लीगल स्टडीज के टेक्स्ट बुक से. ठीक है, इट बेसिकली मीन्स अदर जजेस. प्रोनाउंसिएशन अगेन डिपेंड्स. सो मेजरली सुप्रीम कोर्ट हमारा सीजेआई से बना है एंड 7 जजेस से बना हुआ है, अदर जजेस अपार्ट फ्रॉम सीजेआई. एंड ये जो नंबर है ये पार्लियामेंट खुद रेगुलेट कर सकता है अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ स्पेसिफाइज. अगर पार्लियामेंट को किसी दिन लगता है कि हम 9 जजेस को रख लेते हैं अलॉन्ग विद सीजेआई, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है, राइट. एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. रिमेंबर, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट. मेजरली इंडिया में कोई भी जो लोग होते हैं जो अपॉइंटमेंट के द्वारा आते हैं, प्रेसिडेंट इज द वन व्हिच स्पीयरहेड्स एवरीथिंग, हु बेसिकली लुक्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच पीपल. एंड ये अपॉइंटमेंट होता है under his hand and seal, which is of course officially on the recommendation of National Judicial Appointments Commission. देखो एक चीज याद रखना, remember this very thing, I'm telling this to you. Whenever you're reading bare acts, ponder over the superscripts as well and subscripts. तो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. अभी जो 2 है ना, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है. सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर द कंसल्टेशन with such judges of the Supreme Court and that of the High Court in the states as the President may deem necessary for the purpose. Now remember, this particular thing has now been removed on the recommendation, right, under Article 124A of the Constitution. And of course, NJAC. This was known as NJAC, that is the National Judicial Appointments Commission. Remember, this has been removed, right, completely. अब क्या होता है, कंसल्टेशन से होता है. अब क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, सीजीआई से वो बात करते हैं एंड तब वो जजेस को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. सो नाउ द वर्ड इज आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी. दिस हैज बीन रिमूव्ड. अभी केसेस को डिस्कस करेंगे हम, 4 जजेस के केस थे उन सबको डिस्कस करेंगे. ओके, तो फिर है a judge may be removed from his office in the manner provided in the 4th clause. We'll see through it. And a judge may, by writing under his hand address to the president, resign his office. ठीक है, 2 तरीके हैं रेजिग्नेशन. ठीक है. The age of the judge of the Supreme Court shall be determined by such authority in such a manner. Parliament, so Parliament regulates everything. चाहे emoluments, चाहे उसके एज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि रिटायरमेंट का कोई तरीका हो, या फिर नंबर ऑफ जजेस हो. पार्लियामेंट रेगुलेट्स एवरीथिंग. ओके, अब कोई ये आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये पूछ ही लेते हैं. ये ए और बी सी करके ऐसे पूछ लेते हैं, 3 स्टेटमेंट्स देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ए और बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए और सी हो सकता है, नन ऑफ द अबव हो सकता है. तो रिमेंबर दिस, डू दिस थॉरली. ओके, हैज बीन एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन. ठीक है, दिस इज वन क्राइटेरिया.
Others has been for at least 10 years an advocate of High Court or two or more courts in succession, is in the opinion of President a distinguished jurist. These three criteria are for sure very necessary, and these are very, very important that you need to learn, okay, for your exam. Right, whether it is for CLAT, whether it is for यूपीएससी में बैरक भी पढ़ना पड़ता है, CLAT में स्किप कर सकते हैं बैरक, लेकिन वी स्टडीड इट ourselves. सो आई रेकमेंड कर लेना चाहिए. एग्जाम में इतना टाइम तो बचा नहीं है बैरक पढ़ने का, तो इस वीडियो को देख लेना एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यू आर डन विद इट. ठीक है, कोई 10 साल के लिए एडवोकेट रह गया हो, 5 साल के लिए कोई जज हो हाई कोर्ट में, या फिर कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के आंखों में, ये जो 3 क्राइटेरिया हैं ये आपको जज बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है, अब हाई कोर्ट वगैरह को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर अस, आई गिव अ रीड टू इट. हाई कोर्ट मतलब कोई भी ऐसा कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन हो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से, किसी पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी से, वो एक हाई कोर्ट हो जाएगा. बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बॉम्बे में है. इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, बॉम्बे एग्जैक्टली नॉट बॉम्बे बट यस महाराष्ट्र. ठीक है, बिकॉज महाराष्ट्र कोई भी मैटर होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएगा जहां बॉम्बे में सेटल्ड है. In computing for the purpose of this clause, the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office, not inferior to that of the district judge. ये जो ऊपर के सारे आपके जो ये है ना क्राइटेरिया, तो बोल दिया गया है कोई भी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे ना हो, ये बोल दिया गया है इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया में. आफ्टर इज बिकम एन एडवोकेट, ठीक है, इन द एडवोकेट नीड्स टू बी इंक्लूडेड. फाइन. अब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall not be removed from his office except by an order of the president passed after an address by each house. So remember, this is an impeachment motion. Impeachment motion is basically, देखो remember this thing, impeachment motion जो word है ना impeachment, that has been used specifically for the president's removal. अगर आप president का खोलोगे, आप relevant sections में जाओगे president का, 52 से चालू हो जाता है president. यूनियन जब आप खोलोगे तो आर्टिकल 52 से चालू हो जाएगा. वहां पर आप देखोगे प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट की चीजें लिस्टेड है. अब जो वर्ड है ना रिमूवल, देखो जब भी में लेमन भाषा जो है हमारी, जब आप पॉल साइंस पढ़ते हो, तो इट्स दैट कोई भी रिमूवल ऑफ एनी अपॉइंटेड इंडिविजुअल, ये रिमूवल को हम इम्पीचमेंट बोल देते हैं. ठीक है, बट इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, टेक्निकली. क्यों? क्योंकि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज करा गया है, प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट. बाकी जो अदर एंसिलरी लोग हैं, ठीक है, इनके लिए, इनके रिमूवल के लिए सिर्फ वर्ड रिमूवल यूज करा गया है, इम्पीचमेंट यूज नहीं करा गया. सो रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट इम्पीचमेंट, आई एम टॉकिंग जस्ट द रिमूवल. ठीक है, रिमूवल कैसे होता है? टोटल मेंबरशिप. ठीक है, मतलब अगर टोटल मेंबरशिप लेट्स सपोज उस टाइम हाउस की टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 543, 543 का हाफ इज टोटल मेंबरशिप 543. ठीक है, दिस इज क्राइटेरिया नंबर 1 और स्टेप 1. एंड स्टेप 2 इज जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उस टाइम हाउस के. प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जो हाउस में प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं. मतलब लेट्स सपोज प्रेजेंट है 400 लोग, 400 प्रेजेंट एंड वोटिंग है. और ये भी हो सकता है हाउस में प्रेजेंट हो 402, लेकिन जो 2 लोग वोट ना कर रहे हो, लेकिन 400 में प्रेजेंट और वोटिंग नहीं है, उसका 2/3 निकालना है. ठीक है, उसका 2/3 निकालना है. एंड फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली रिमूवल पास हो जाएगा. दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू, दिस इज द प्रोसीजर यू फॉलो. अब बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं. ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, इफेक्टिव मेजोरिटी है. ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन करके रखे हुए टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, वो एक वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगी. एंड बेसिकली एम ही नहीं आप किसी को रिमूव कर रहे हो, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी के बेसिस पर आप उसको रिमूव कर सकते हो. बट अगेन पार्लियामेंट के हाथों में पावर है रेगुलेट करने की प्रोसीजर को. एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन इन दैट बिहाफ. सो बेसिकली आप होता है ओथ लेते हो. ओथ इज समथिंग, इट्स रिप्रेजेंटिंग योर एलिजियंस. एलिजियंस मतलब आपका वो आपकी ईमानदारी आप दे रहे हो, या फिर आप एक्सप्रेस कर रहे हो कंट्री की तरफ कि मैं आज जज बना हूं, मैं फेयर तरीके से काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा फेयर ट्रायल हो, स्पीडी सेटलमेंट हो, स्पीडी सेटलमेंट नहीं बट यस स्पीडी ट्रायल हो, लोगों को जस्टिस मिले. दैट इज द थिंग्स आई अश्योर to all the people, and this I say under oath. who examines the oath, या फिर वो oath को रजिस्टर करने के लिए, या फिर जब वो बंदा oath ले रहा होता है, जब वो चीजें बोल रहा होता है कि मैं अपनी अलीजेंस दे रहा हूँ कंट्री की तरफ, तो उसके साथ में कौन होता है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है? प्रेसिडेंट इज देयर, राइट. सो प्रेसिडेंट रिकॉर्ड करेगा उसकी ओथ को, राइट, सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ना हो तो कोई और बंदा जो ऑथराइज है बाय द प्रेसिडेंट.
अच्छा, थर्ड स्केड्यूल में लिखा हुआ है, क्या है थर्ड स्केड्यूल अभी बता रहे हो उसको। नो पर्सन हैज बीन हेल्ड who has been held office as the judge of the Supreme Court shall, okay fine, so अगर आप सुप्रीम कोर्ट बने हो, आप सॉरी अगर आप एक जज बने हो, आप सुप्रीम कोर्ट के, तो आप ऐसा नहीं है कि आप प्लीड कर सको किसी भी कोर्ट के बिफोर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने एक वो सुना होगा लीगल मैक्सिम, नेमो जूडिक्स इन कॉसा सुआ। नेचुरल लॉ, नेचुरल जस्टिस जब पढ़ते हैं ये आता है, ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है क्लास 11th का, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, और वो मैं वीडियो डाल दूंगी उसके लिए। ठीक है, इसका मतलब है नोबडी कैन बी अ जज इन इट्स ओन कॉज। ठीक है, इसका मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने कोई क्राइम कमिट करा है, ठीक है, और जजमेंट डिलीवर करने के लिए मेरे को ही बुलाया गया है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेन नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, क्योंकि मैं जजमेंट दूंगी जो मेरे फेवर में होगा, है ना। तो दैट इज नेमो जुडिक्शन कॉसेस वर्क, ऐसा नहीं होना चाहिए, नोबडी कैन बी अ जज इन इट्स ओन कॉज। लेकिन अगर आप ये वाली चीज को देखोगे, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का आया और वो प्ली कर रहा है किसी और सुप्रीम कोर्ट जज के सामने, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज, क्योंकि वो मान लो उस जज को जानता हो जो प्लीड कर रहा है, जो उसका फ्रेंड है, तो हो सकता है कि उस जजमेंट उसके फेवर में डिलीवर कर दे, राइट। तो फिर तो बायसनेस हो गई, नेचुरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो यही बोल रहे हैं, क्या प्लीड नहीं कर सकते जब आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कोर्ट के सामने, बिकॉज हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। 124 इज एनजैक, वील डील विद इट, नो वरीज। अच्छा, एक चीज याद रख लो, थर्ड शेड्यूल में क्या चीज मेंशन, रिमेंबर हमारे डिफरेंट शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कितने शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है। इसको लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी हुई है, जो पहले के पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के, आप उनको देख लेना एक बार, बट जस्ट रिमेंबर इमोल्यूमेंट्स एंड एफर्मेशंस। एफर्मेशंस होता है ओथ से रिलेटेड, दिस इज द थर्ड schedule, and emoluments होता है, this is the second schedule. Emoluments is salary, salaries, perks, allowances, privileges. Affirmations basically deals with the content of oaths, the statement that you make, this statement is there under affirmation, एक एक बंदे की mentioned है, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक एक बंदे की mentioned है। तो आप देखोगे ये ओथ में उसको क्या बोलना है, ये आपका थर्ड शेड्यूल एफर्मेशन में मेंशन्ड है। ठीक है, एंड इन द सेम वे एफर्मेशन इज ए, इमोल्यूमेंट्स इज ई। मैंने आपको जो बताई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको करना, मेरी टीचर ने मेरे को ट्रिक बताई थी, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इमोल्यूमेंट्स इज सैलरीज, तो जैसा होता है ना कि एक प्रोविजन नीचे लिखे भी हैं कि जो बंदे की सैलरी पर्क्स अलाउंसेस है जज की, वो उसके डिसएडवांटेज की तरफ इंक्लाइन नहीं कर दी जाएगी ड्यूरिंग हिज टेन्योर, सो दिस इज देयर विच एस्टैब्लिश्ड, एंड वो इमोल्यूमेंट्स वगैरह सब सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ करे जाते हैं। अच्छा, दो तरीके के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है, अगर आप मेरी वीडियोस बहुत रिलीजियसली देखते हो। कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड होता है जो लोगों के टैक्सेस से मिलकर बनता है, ठीक है, एंड अदर थिंग्स, वो जो रेवेन्यू कमाते हैं, वो एक पर्टिकुलर पूल होता है, जो एक पर्टिकुलर पूल परमानेंट होता है, और उस पर्टिकुलर पूल से जो रेगुलर चीजें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वहां से ड्रॉ करी जाती है, जैसे सैलरीज हो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, एम्प्लॉइज की, वो सब इसी पूल से ड्रॉ करे जाएंगे, जो फिक्स्ड अमाउंट है कि इससे ड्रॉ करना ही करना है। किसी दिन मान लो कंट्री के मान लो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से बहुत भयंकर लॉसेस हुए, है ना, या फिर देखो वॉर हो गया, कोई बहुत इमरजेंसी है, फंड की जरूरत है, वो कंटेंजेंसी फंड से लोगे। कंटेंजेंसी फंड से जैसे पैसे निकालोगे उसको रिफिल करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड से। तो कंसोलिडेटेड फंड एक परमानेंट है कि इतना पैसा तो जाएगा ही जाएगा सैलरी पे करने में, कंटेंजेंसी आज वॉर हो गई, आज ये पैसा निकलेगा, दिस इज दैट। तो एनजैक को अभी मैं छोड़ रही हूँ, बिकॉज देखो, चलो आई एक्सप्लेन द थिंग्स। तो रिमेंबर देयर आर 4 जजेस केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज आपका एसपी गुप्ता केस, ठीक है, ये पर्टिकुलर केस हुआ था 1981 में। बेसिकली यहाँ पर वो ये बोला गया था, देखो एक ना डिस्प्यूट चल रहा था कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जजेस का अपॉइंटमेंट बहुत बायस तरीके से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता था कि जब जजेस अपॉइंट करते थे तो सीजीआई की नहीं सुनते थे, प्रेसिडेंट की ज्यादा सुनते थे। तो पहले ये वाला सिस्टम था कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, है ना। तो पहले वाले केस में ये बोल दिया गया कि भाई एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी है, दिस इज द कीवर्ड दैट हैज बीन यूज्ड, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी। इसका मतलब जो सीजीआई होगा, हमने बोला ना सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस एक कोलिजियम बनाते हैं। कोलिजियम का मतलब क्या होता है? कोलिजियम इज समथिंग विच इज ग्रुप ऑफ जजेस, राइट, दैट इज विच कंसिस्ट ऑफ अ सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू अपॉइंट अदर जजेस, ठीक है, दैट इज नोन एज अ कोलिजियम सिस्टम,
ठीक है, ये कोलिजियम सिस्टम डिपेंड करता है, ये तो एक तो है ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हो सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये कोलिजियम आपका अपॉइंट करेगा अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट को। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये होता है कोलिजियम। तो इस पर बड़ी डिबेट चलती थी। ये सिस्टम तो अब क्लियर कट सॉर्टेड है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन पहले नहीं था, पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, तो दिक्कतें आने लगी। तो इससे ना 4 केसेस हमारे बनकर आ गए, एसपी गुप्ता का के फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस। एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ये आपका आ गया कि भाई सीजीआई का ओपिनियन जो है अपने जजेस के साथ वो डिस्कस करता है, और जो प्रेसिडेंट को बताता है कि ये वाला जज अपॉइंट करो, ये बाइंडिंग नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को नहीं अच्छा लग रहा तो प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करेगा। सो दिस इज नॉट बाइंडिंग, द डिसीजन ऑफ द सीजीआई इज नॉट बाइंडिंग। सेकंड पर आते हैं, ठीक है। सेकंड बेसिकली इट वाज अबाउट the it was also the second judge's case और एसपी गुप्ता। भाई देखो, सबको एट द एंड ऑफ द डे एसपी गुप्ता बोलते हैं, ठीक है, बट दिस वाज द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज द स्पेसिफिक नेम फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, नो नीड टू रिमेंबर द नेम, जस्ट रिमेंबर द सेकंड जजेस केस। इससे पहले वाला था फर्स्ट जजेस केस, उससे पहले वाला था सेकंड जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू मे रिमेंबर, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। बेसिकली बोल दिया, यहाँ पर बात हुई थी कि कोलिजियम सिस्टम बनेगा, यहाँ पर बात हुई, एक फाइनली टर्म आया कोलिजियम सिस्टम की, यार अब कोलिजियम सिस्टम बनाएंगे सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, ठीक है, ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। थर्ड जजेस केस जो था, थर्ड जजेस केस, इसको बोलते हैं री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब होता है कोई चीज आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, अभी ही पढ़ाऊंगी मैं, उस केस में प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एडवाइस पूछी, दोबारा मांगी, री है ये, दोबारा एडवाइस मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि कैसे अपॉइंटमेंट कर। तो इस बार क्लियर कट चीज मिल गई कि यार इस बार क्लियर कट सॉर्टेड होगी, कोलिजियम बनेगा कैसे। कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के लिए सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस बनेगा, और हाई कोर्ट के लिए सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस बनेगा। दिस इज द रिप्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस और द थर्ड जजेस केस, and this particular case came in the year 1998, है ना, and 1998, yes 1998, and the second judge's case came into existence in the year 1993, ठीक है। पहले था 1981 में, फिर 1993 में, 1998 में, लास्ट वाला आता है 2014 में। फाइन। सो जो हमने बात करी 2014 में कैसा सिनारियो था, 2014 में एक चीज हुई एंड 2015 में एक और चीज हुई। ये जो एनजैक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये जो आपका आर्टिकल 124A के बारे में बात करता है, इसने बोला अभी बात हुई 2014 में, इसको क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसको हटा दिया गया और आपका नॉर्मल कोलिजियम सिस्टम जो थर्ड जजेस केस में बोला गया था वही फॉलो करा है आज तक। 2014 में बोल दिया गया एक बॉडी बनाता है विच इज एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस बॉडी में लोग होंगे और ये लोग अपॉइंट करेंगे हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अब देखो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इज द चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? मेरे पास बच्चे आते हैं, पीपल आस्क मैम एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, ये बता दो। एक्स ऑफिशियो इज नथिंग बट इट मेजरली मींस आप एक ऑलरेडी एक बॉडी को होल्ड कर रहे हो एंड एक साथ एक और बॉडी आपको पकड़ा दी गई है होल्ड करने के लिए, दैट इज एक्स ऑफिशियो। जैसे हम बोलते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, दिस मींस ही इज रेंडरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वाइस प्रेसिडेंट, ऑल्सो along with that he is holding some other responsibility, that is the reason it is known as ex officio. 2 senior most judges of Supreme Court next to the CJI, right? एक यूनियन मिनिस्टर होगा, 2 eminent persons होंगे, ठीक है। 2 eminent persons की डेफिनेशन कहीं नहीं थी। 2 eminent persons, चलो ये भी बोल दिया गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, माइनॉरिटी वगैरह से होंगे, ठीक है। और ये भी बोल दिया कि यार एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। और ये बोल दिया गया, और इसमें ये भी बोल दिया गया कि नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द एनजैक shall be questioned or invalidated merely on the ground of existence of vacancy or defect in the constitution of the commission, ये भी बोल दिया गया। तो भाई दिक्कत हो गई ना, आपको नहीं लगा गूगलीनेस हो रही है? कोई एमिनेंट पर्सन, कौन है एमिनेंट पर्सन? राइट, हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो एमिनेंट पर्सन, हो सकता है कोई और हो जिसके साथ रिलेशन हो गवर्नमेंट के, राइट। तो ये तो भाई अनफेयर होगी ना चीज, तो इसलिए इन कंफ्यूजन को देखकर फाइनली इसको हटा दिया गया बॉडी को, एनजैक को, ठीक है। दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2015। फाइन, रिमेंबर दिस इज द केस सुप्रीम कोर्ट advocates on record association and another versus the Union of India case. This is the 99th constitutional amendment. इसको at any cost याद रखना ही है, this is very very important. If you don't remember this, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये आपको पता है ना साइटेशन, आई होप यू नो दिस नाउ,
राइट, हम तो लॉ स्कूल में इसको करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस इज द डेट, ठीक है, दिस इज द साइटेशन। व्हाट इज दिस साइटेशन, मेरे को बताना। दिस इज साइटेशन प्रॉपर वाला। AIR इज ऑल इंडिया रिपोर्टर, दिस इज द पब्लिशर जिसने रिपोर्ट करा है, बहुत ट्रस्टेड। 2016 में जजमेंट आता है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर होता है। और पेज 117 पे AIR के ये जजमेंट प्रेजेंट है। AIR जाकर खोल सकते हो अपनी लाइब्रेरी में, लॉ स्कूल में हो तो, नहीं तो स्कूल की लाइब्रेरी में वैसे होते हैं तो देख सकते हो। फंक्शंस ऑफ द कमीशन देख लिया। अब पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CJI, राइट, एंड अदर थिंग्स। तो अच्छा, कौन से आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं? 124 तो याद रखना है बाय डिफॉल्ट, इसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। ये पूरा 124 ही पढ़ रहे थे, पैसेजेस आएंगे तो समझ सकते हो। कुछ लिखने को आया है इस पर, जैसे आंसर राइटिंग में मेंस में, तो आप लिख सकते हो, तो यू हैव कंटेंट। 4 जजेस केस के बारे में जरूर मेंशन कर देना मेंस में, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रिकमेंड पर्संस। फाइन फाइन फाइन। सैलरीज एक्सेट्रा ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये ड्रॉ करते हैं चीजों को। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो उसके उसके डिसएडवांटेज पर वेरी नहीं करेंगे उसको। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन राइट नाउ, लेट्स सपोज पर्सन A has been appointed as a judge of the Supreme Court, salary he used to draw from the government was around 50K per month. I do not know the salary genuinely, just a hypothetical number. आपने बोल दिया उसके टेन्योर के टाइम पे 30K पर मंथ, तो 20K का तो लॉस हो गया ना, नुकसान हो गया अगेन उसके लिविंग पर एंड एवरीथिंग, सो दैट इज द रीजन। ऐसा चीज नहीं होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस एंड रिटायर्ड जजेस, इन तीनों को लर्न कर लेना। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें पूरा वर्बेटम पता होना चाहिए, जस्ट रिमेंबर इफ प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट कंपैरेटिव एग्जाम्स लाइक क्लैट, जिसमें कुछ भी सब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी तो बहुत है बट एनीवे उसमें सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है नहीं, तो उस केस में आप इसको जस्ट रिमेंबर द आर्टिकल नंबर, राइट। हाउएवर इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ऑन, रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि आंसर राइटिंग में इट हेल्प्स। ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस क्या है? खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। चीफ जस्टिस बाय रीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेंडर नहीं कर सकता, एब्सेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप कोई और जज बुला लेते हो, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है उस पर्पस के लिए, सो इसका एक्टिंग चीफ जस्टिस, राइट। एडहॉक जजेस होते हैं किसी टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मान लो कोई मैटर है, जैसे आपको पता है ना 3 तरीके की बेंचेस होती है, वन इज अ सिंगल जज बेंच, अदर वन इज अ डिविजन बेंच, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेसिकली कोई भी मैटर हो जो कॉन्स्टिट्यूशन से पर्टेन करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन की मेजरली आई वुड से सिग्निफिकेंस से, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाले लॉज हैं, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है, जिसमें 5 लोग होते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मान लो किसी रीजन की वजह से 4 लोग थे और एक बंदे की नीड थी बहुत ज्यादा, तो किसको लाओगे? ये है एड ऑफ जजेस उस पर्टिकुलर मैटर के लिए जो पर्टेन कर रहा है, जितना वो नंबर ऑफ जजेस डिमांड करता है उस पर्टिकुलर बेंच में। तो आप एक जज को ले आओगे हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट से किस जज को लाओगे? जो क्वालिफाई करता है क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। दिस मीन्स व्हाट वाज द क्राइटेरिया, बताना मेरे को। कोई बंदा 5 साल तक जज है हाई कोर्ट में, कोई बंदा 10 साल तक एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है, एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रहा है 2 और मोर हाई कोर्ट्स में, और लास्टली एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, ठीक है, इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपके 3 क्राइटेरिया थे, हमने पढ़े थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मान लो वो बंदा है, वो हाई कोर्ट में सर्व कर 10 साल तक वो हाई कोर्ट जज सर्व कर रहा है, एंड उसको आप ले आओगे, राइट। आप उसको 10 साल नहीं, 5 साल, मैंने 5 साल तो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया, यस 5 साल, 5 साल से थोड़ा ऊपर 6 साल 7 साल तक वो जज सर्व कर रहा है, तो वो तो एलिजिबल हो गया ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। उस बंदे को आप ले आओगे और एडहॉक जज वाली एडहॉक जज उसको बना दोगे उस पर्टिकुलर मैटर के लिए। एडहॉक का मतलब ही होता है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो चीज फॉर्मुलेट हुई हो, उसको बोलते हैं एडहॉक। आर्बिट्रेशन में भी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो है हमारा, उसमें जो सेक्शन 2 क्लॉज A है, उसमें हम जो बात करते हैं ना कि आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट बाय परमानेंट आर्बिट्रेशन बॉडी, तो 2 तरीके होते हैं, परमानेंट आर्बिट्रेशन, एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन में कोई प्राइवेट बॉडीज करते हैं आर्बिट्रेशन, यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, एंड ऑल्सो वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्मुलेट होता है, इसलिए एडहॉक बोलते हैं उसको, फाइन। तो एक हाई कोर्ट का जज जो ड्यूली क्वालिफाइड है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी डेजिग्नेटेड बाय चीफ जस्टिस, उसको चूज कर देगा। ड्यूटी ऑफ जज है उसको सैलरीज, उस टाइम की अलाउंसेस, उस टाइम का केस का जो भी अमाउंट है, या फिर इतना रिस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज के, जितना ही दिया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। For answer writing in UPSC, it is going to help a lot. Attendance of retired judges at sittings of the Supreme Court. अच्छा, nothing जब भी चालू होते हैं ना चीजें, nothing means we are not disregarding
whatever is mentioned previously or whatever is mentioned, we are taking that also on an equal pedestal. We are not demeaning that particular point. Matlab, not ignoring, notwithstanding means not ignoring, right? Anything in this chapter may at times with the previous consent was who has held the office of the judge of the High Court and is duly qualified for the appointment as judge of Supreme Court to sit and act as the judge of the Supreme Court. And every such person is requested while so acting, he be entitled to get the allowances. हाँ टाइम्स हो सकता है कि आपको रिटायर जजेस की नीड हो सुप्रीम कोर्ट में, और आप हो सकता है रिटायर्ड जजेस को भी बुला लो, तो रिटायर्ड जजेस को उस टाइम का पैसा सैलरी अलाउंसेस या जो लेवल है एक करंट सुप्रीम कोर्ट के जज का उतना ही मिलेगा। तो एट टाइम्स यू वुड बी नीडिंग दोस पीपल, एक पर्टिकुलर केस में बैठ जाओ, या फिर हो सकता है हमें नीड हो इमीडिएट बेसिस पर, तो एक्टिंग तो आपके रिटायर्ड जजेस भी चलेंगे। फाइन, okay. Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of the court unless he consents to do so. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जबरदस्ती किसी को नहीं बिठाओगे, उस बंदे की वो होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। अब आते कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस 129 130 also. Seat of Supreme Court shall be in Delhi or any other places as the president may specify from time to time. president के पास पावर है along with chief justice इसको करने की कि किधर आपका सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में वो उसका बेंच भी चेंज करें, बहुत सारे डिबेट्स है कि बेंचेस को सुप्रीम कोर्ट माना दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है, बट आप उसके बेंचेस कहीं और रख दो, ठीक है, यू कैन डू दोस थिंग्स एज वेल। नाउ सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिमेंबर दिस थिंग, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है 129। साइमल्टेनियसली ऐसा रिकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड, सो ये हाई कोर्ट के लिए भी चलता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो भी जजमेंट्स उसने बनाए हैं, ठीक है, जो भी जजमेंट्स उसने दिए हैं, डिग्री दी है उसने, फाइनल ऑर्डर उसने पास करा है, ठीक है, उन सब की मेमोरी, ठीक है, वो सब की मेमोरी परपेचुइटी में होगी। परपेचुइटी में मतलब होता है हमेशा रहेगी उसके पास, मैंने जो जजमेंट डिलीवर करा है उसकी कॉपी, उसका रिकॉर्ड, टेस्टिमनी, सारी चीजें मेरे पास हमेशा रहेंगी और कभी नहीं खोएंगी, उसका मैं रिकॉर्ड हमेशा रखूंगा। एंड ऑल्सो पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक होता है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर जज को, एक हो रहा है कि आप बहुत वहीमेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हो कि उसको बहुत बुरी तरह बोल रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, दैट इज नोन एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये जो सारी चीजें है ना बहुत सारे स्टैट्यूट्स में मेंशन है, ठीक है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसमें बाकी सारे प्रोसीजर्स मेंशन है कैसे कंटेम्प्ट होता है, पनिशमेंट कैसे होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द केसेस इन परपेचुइटी, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग कुड बी इंपॉर्टेंट इन दिस। 120 मैंने अब तक क्या बोला, आपको जो लर्न करना है हम इसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं। 124 लर्न करना है, 120 आपको 9 लर्न करना है, 130 लर्न करना है, 126 127 एंड 128 इनको लर्न करना है, ठीक है। दिस इज अबाउट सीट, दिस इज अबाउट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज जनरल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, this is going to deal with the retired judges, this is going to deal with the ad hoc judges, and this is going to deal with 126 is going to deal with what? It is going to deal with acting chief justice, and also मैं वही देख रही थी 125 में it deals with salaries. So remember 125 not important, you leave 125, leave 125, you just remember this particular thing, this and this, acting of ad hoc and sitting। अच्छा, बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अगर इन पर्टिकुलर ये भी कोई पर्टिकुलर मैटर हो, इनसे डील हो कि यार दो स्टेट्स में डिस्प्यूट हो गया, एक गवर्नमेंट और कुछ स्टेट्स वर्सेस कुछ और स्टेट्स, गवर्नमेंट और या फिर कोई और स्टेट्स, कोई भी मैटर हो, यूजुअली हम इसको मानते हैं कोई भी मैटर हो फेडरलिज्म से वो मैटर पर्टेन कर रहा हो, तो वो जो फेडरलिज्म वाला मैटर है, हम्म, वो जो फेडरलिज्म वाला मैटर है वो फेडरलिज्म का मैटर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसी पहली बॉडी होगी जिसको आप अप्रोच कर सकते हो बेझिझक, बिना किसी हायरार्की को फॉलो करे, आप बस पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट अगर आपका मैटर, अगर आपका जो केस है फेडरलिज्म से बॉर्डिंग करता है, या फिर जो क्राइटेरिया मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस द अदर स्टेट्स, स्टेट्स वर्सेस अदर स्टेट्स एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ऑलरेडी बोल दी है कि जो भी ट्रीटीज हो, कन्वेंशंस हो, अग्रीमेंट्स हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से चले आ रहे थे, उनके लिए, उनके डिस्प्यूट के लिए आप नहीं जाओगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के पास। ऐसे बहुत सारी चीजें आई जब हम पढ़ रहे थे अपने क्लैट के लिए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि ऐसी रिवर ट्रीटीज हुए,
जो ऑलरेडी कॉलोनियल टाइम से एक से दूसरी स्टेट पर उससे डिस्प्यूट चल रहा है, वो फॉलो कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले ही, और अब उनमें जाकर डिस्प्यूट हो रहा है ना। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाना डिफिकल्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट will refrain itself from discussing or delivering judgment or from entertaining that particular matter which pertains to an issue prior to the commencement of the constitution. Understanding? So इसलिए उनके स्पेशल ट्राइब्यूनल्स होते हैं उस मैटर को सॉल्व करने के लिए. फाइन. appellate jurisdiction of supreme court, very very important. We have appellate jurisdiction. ये देख लो, appellate jurisdiction certain matters है ना. दूसरा नेक्स्ट होगा civil matters, and last one is the criminal matters, and the last one deals with certification. ये एक साथ टैंडम में चलते हैं, जब भी इनको पढ़ो इनको एक साथ पढ़ लो. तो इन सर्टेन मैटर्स का मतलब है वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ऑफ देम, कॉन्स्टी, सिविल, क्रिमिनल. अच्छा लिखा भी हुआ है, सिविल, क्रिमिनल और एनी अदर प्रोसीडिंग, कॉन्स्टी एज वेल. तो कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन है ना, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपील कर दो सुप्रीम कोर्ट में, राइट. एंड इट इज इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. ठीक है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इन सारी चीजों पर. ठीक है, where a certificate is given Supreme Court on the ground any the particular case has been wrongly decided कि भाई कोई substantial question of law कुछ निकल कर आया. ठीक है, this is it pertains from person to person. ये interpretation of law एक बहुत urgent चीज की, यार लॉ में बहुत ज्यादा ambiguity है, लॉ एक particular point पर silent है, क्या करना चाहिए आगे, दैट इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. उसके बेसिस पर जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो बहुत ज्यादा गुगली है. ठीक है, तो अब मेरे को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए. ओनली सुप्रीम हाई कोर्ट सर्टिफाइज कि ये मैटर अपील होना चाहिए, देन ओनली इट इज गोइंग टू गो. Appellate jurisdiction in case of civil matters. Civil matters में अब आता है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर एक ऐसा ओपिनियन है सुप्रीम हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट भी थोड़ा गुगली है, थोड़ा ड्यूबियस है ना, या फिर थोड़ा सा पेट्रिफाइड है कि okay, this is my opinion, I'm not sure about it, I think we should consult a higher body, that is we should consult the Supreme Court. तो उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मैटर. सो रिमेंबर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट. फिर नेक्स्ट हम आते हैं इधर, एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 में अर्ज ऑन द ग्राउंड दैट अपील इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन. ठीक है, अब आते हैं एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स. क्रिमिनल मैटर्स में तब आते हैं, हमारा क्या होता है, जो बच्चन सिंह केस था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें बोला गया था कि आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी दोगे. ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी दोगे. बहुत सारे कंसर्न्स है, ह्यूमन राइट वाले कंसर्न्स हैं, है ना, डेथ पेनल्टी बहुत बड़ी चीज है, इसे डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए. अब क्रिमिनल मैटर्स में, पर्टिकुलरली क्रिमिनल मैटर्स में एपीलेट जुरिसडिक्शन तब काम आता है जब मान लो आपकी हाई कोर्ट ने आपको डेथ पेनल्टी दे दी, तो बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये आपका जो कन्विक्शन है डेथ पेनल्टी का ये एटलीस्ट रिवर्स हो जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए या फिर कोई और इम्प्रिजनमेंट हो जाए. ठीक है, या फिर बंदे ने क्या करा, अपने आप को हाई कोर्ट में वो लेकर ही नहीं गया, वो हाई कोर्ट की अथॉरिटी को क्रॉस नहीं करा, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट चला गया, फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स अथॉरिटी, एंड वहां पर उसको पता चल रहा है कि वहां पर भी उसको कन्विक्ट कर दिया गया डेथ सेंटेंस में, तो डायरेक्टली भी वहां पर उससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सर्टिफिकेशन चाहिए आर्टिकल 134 में एट द एंड ऑफ द डे कि वो मैटर जाए सुप्रीम कोर्ट में अपील. सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? सर्टिफिकेशन ऐसे हो सकता है, या तो आप खुद एक ओरल एप्लीकेशन लगाओ हाई कोर्ट में कि आपने जो डिग्री जजमेंट दिया है ये भाई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर सब्सटैंशियल, ये तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका आ गया 132 में, 133 में आपका सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड ओपिनियन आ गया ऑफ द हाई कोर्ट, एंड लास्ट है 134 तो हमने देख ही लिया. तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो हमने ओरल एप्लीकेशन लगाइए, हम सर्टिफिकेशन हमारे केस करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए. या फिर हो सकता है कि हाई कोर्ट को खुद लगे कि भाई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, हम थोड़े खुद कंफ्यूज्ड हैं, तो हम अपने खुद के मोशन पर, अपने खुद के लिए जो हमें ठीक लगता है, हम इस मैटर को अपील करने के लिए बिना ओरल सर्टिफिकेट दिए बाय द पार्टी इसको दे सकते हैं. सर्टिफिकेशन खुद ही हाई कोर्ट दे सकते हैं कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट चले जाओ. ठीक है, फॉर अपीलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके,
jurisdiction and powers of the federal court under the existing law to be exercisable by the Supreme Court. देखो पहले ना हमारे पास सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया, वी हैड फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी थी। एंड जब हम आजाद हुए तो फेडरल कोर्ट का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया। तो जो भी चीजें आज तक फेडरल कोर्ट ने करी हैं वही सुप्रीम कोर्ट की भी चीजें हैं। दिस इज व्हाट इट डील्स विद। 135 लर्न करने की जरूरत नहीं है, इतने बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इतना बोल सकती हूँ। यूपीएससी के लिए भी फिर राइटिंग इट एक लाइन लिखकर आ सकते हो इस पर, बट इस पे पॉन्डर करने की कोई चीज नहीं, इतना रेलिवेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे आ जाए स्पेशल लीव टू अपील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको तो पता होना चाहिए, क्लैट हो, यूपीएससी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू शुड नो दिस। ये मेजरली ना बहुत हाई प्रोफाइल केसेस के लिए आप यूज करोगे। देखो कि आप देखोगे कोई कोई पर्टिकुलर वो है, पॉलिटिशियन है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर मान लो सेलिब्रिटी है, उस सेलिब्रिटी को एकदम से क्या चाहिए, वो किसी मैटर में फंसा हुआ है ना, वो एक जो पर्टिकुलर डिसीजन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है ना या फिर हाई कोर्ट का, बिल्कुल भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊं ताकि मेरे को हायरार्की ऑफ केसेस को क्रॉस ना करना पड़े। फिर सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट बॉडी है ना, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी वो तो वैलिड है ना, मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊं। दिस इज स्पेशली आप जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट, दिस इज स्पेशल लीव टू अपील, आप स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हो। सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रेशन पर आपको ले भी सकता है आपके केस को, फिर केस को रिजेक्ट भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट डिटर्मिनेशन ऑर्डर। ओके, लेकिन अगर मान लो कोई हमारे मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स होते हैं कंट्री में जो पर्टिकुलरली मिलिट्री रिलेटेड मैटर से डील करते हैं, वहां का कोई जजमेंट डिग्री ट्राइब्यूनल है, वहां का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आया है फाइनल, उस फाइनल ऑर्डर को का आप अपील सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। दिस इज एन एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन आप लेकर जा सकते हो, आप बिल्कुल बाईपास कर दो जो वे है हाई कोर्ट में जाने का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा ऊपर पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट और मेरा मैटर को सॉल्व कर दो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन डिस्क्रेशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, रीजन भी देने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आपको स्पेशल लीव टू अपील वो डिसमिस कर रहा है तो। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, देखो अब वैसे बोलते हैं कि कोर्ट्स ना अब बाउंड होते हैं अपने डिसीजन के द्वारा। ठीक है, अपने जजमेंट के द्वारा जो जजमेंट है उस पर अटे रहेंगे, टिके रहेंगे। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के पास खुद का पावर है, दैट इज रिवाइजरी जूरिसडिक्शन। रिवाइजरी जूरिसडिक्शन का मतलब है विच इज ऑल्सो रिव्यू, विच इज ऑल्सो रिव्यूइंग, विच इज 137। ये देखोगे आप अपने खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हो एक बार। आप हो सकता है रिव्यू रिवाइजरी जूरिसडिक्शन कोई रिव्यू वाली पिटिशन डाल दे कि आप रिव्यू कर दो, आपने जो डिसीजन दिया हो सकता है वो गलत है, हो सकता है आपने ये वाला पॉइंट को नहीं देखा, ये वाले फैक्ट को नहीं देखा, इसको आप देखकर दोबारा डिसीजन को डिलीवर करो। ये आपका आता है रिवाइजरी जूरिसडिक्शन में। सब्जेक्ट मैटर टू द प्रोविजंस मेड बाय लॉ और एनी रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145। 145 में रूल्स है कि सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कैसे करेंगे जो चीज सीजीआई बनाता है। ठीक है, कि केसेस की रूल्स इन सेंस कि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामला है तो उसके लिए ना 5 जज की बेंच होनी चाहिए। ठीक है, या फिर मेजोरिटी ओपिनियन ही फाइनल जजमेंट बनेगा, माइनॉरिटी ओपिनियन दे सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, बट माइनॉरिटी नहीं बनेगा। सो दिस इज व्हाट दिस इज अगेन सम ऑफ द रूल्स। सो रूल्स ये सारे हैं 145 में, अभी पढ़ेंगे हम, नॉट रेलिवेंट। रिमेंबर 137 दैट इज रेलिवेंट, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन को चेंज कर सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ jurisdiction, I think I'll continue with this in the very next video because video बहुत लंबा खिंच रहा है, so I'll continue with this. So till then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and ऐसे बने रहो। So all the best.